Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. On behalf of Corporate Pakistan Group and Nutshell Conferences, I am grateful to all of you for your valued participation in today's dialogue on COVID-19 challenges and way forward. Corporate Pakistan Group is a virtual group. This is Pakistan's national intelligentsia with 256 members, including the corporate and business leaders, education experts, IT experts, energy experts, media practitioners, foreign policy experts, diplomats, the federal secretaries, 7 mainstream political parties of Pakistan, and their top leadership is member of Corporate Pakistan Group. So this is a political group. The serving and retired officers of Pakistan Army, Navy and Air Force, also the movers and shakers of civil society in Pakistan and Pakistan diaspora abroad, especially in Canada and Middle East, they are part of the Pakistan Group. So we started this group almost 5 years back in July 2015, and in last 5 years we hosted multiple dialogues. We hosted many other forums on different emerging issues, national issues, geopolitics, economy, and various other subjects. We also hosted many get-togethers in different cities. Our regular activities before lockdown were happening on monthly basis in Karachi, Lahore, Islamabad, and Dubai. So before lockdown, we hosted one dinner discussion with the Governor State Bank of Pakistan in Dubai, attended by around 150 finance and banking industry professionals. This was our last physical activity, but after starting the lockdown, what we did initially that we decided to start a fundraising for supporting the poor families or the needy families for the ration distribution. And within 2.5 days, without any single rupee cash transaction, we generated 21 million rupees, and we engaged 3 organizations. Actually, our very important member Shamsuddin Sheikh and Zafar Subhani jointly led this project, and through Akhuwat Foundation, Baitul Salam, and Orange Tree Foundation, we distributed the ration and the food to few thousand families for few weeks. This was our activity, and later we started the different dialogues on economy and the leadership and the impact of COVID on multiple issues. And then day before yesterday, on Sunday, we hosted the federal budget dialogue with the finance minister, Dr. Abdul Hafiz Sheikh, Dr. Miftah Ismail, Dr. Shamshad Akhtar, Ehsan Malik of PBC, and Farooq Khan of Pakistan Stock Exchange, while Zulfikar Akhtar of AF Ferguson's moderated the session. Day before yesterday, we hosted a conversation with Syed Naveed Hussain, the CEO of Baximco Bangladesh. This was a very interesting discussion and moderated by our member Ayla Majid. पूरे पीरियड में जो चीज हमने देखी, सारे मेंबर्स ने कलेक्टिवली काम किया, बट इस सिचुएशन एक ऐसी आई जिस वक्त हमने ये भी देखा कि आज पाकिस्तान में अगर हम लार्ज सिटीज की बात करते हैं तो जो कोविड बेड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, और ये सिचुएशन हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया डिफरेंट सिटीज में। और बहुत सारे और इश्यूज हुए कि जिसमें हमारे मेंबर्स ने जॉइंटली कोलैबोरेट कर रहे हैं। जमशेद अहमद यहाँ पर मौजूद हैं, फार्मीवो के CEO हैं, और इनकी सरबराही में हमने कभी रिसेंटली कमेटी फॉर्म की है जो एटलीस्ट हमारी सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। एंड वी डिसाइडेड कि हम जो हमारे सर्कल में जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर हम आज का डायलॉग करें। डॉक्टर साद नियाज हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह से हैं, तो साद भाई को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप इसमें आएँ। और अब्दुल बारी खान हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, जिससे हमारा डेली का कम्युनिकेशन है। तो अब्दुल बारी भाई को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसमें आएँ। और आज मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर सईद
जो वाइस चांसलर हैं गाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये 3 का हमारा पैनल है। हम इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिजीज पे बात नहीं करेंगे। हमारा फॉर्मेट ये होगा कि हमारे जो तीनों लर्नड स्पीकर्स हैं वो 8 मिनट्स ईच अपना ओपनिंग थॉट देंगे, अपना व्यू देंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट इज द स्टेटस, ओवरऑल फैसिलिटीज अरेंजमेंट्स, और क्या क्या चीजें इस वक्त करनी चाहिए अगर कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई पॉजिटिव केस आता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, क्या है ये एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या देख रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ जमशेद अहमद मौजूद हैं जो खुद फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री का बड़ा इनका एक्सपीरियंस है। लास्ट 2 डेकेड से ये काम कर रहे हैं। इस वक्त डिप्टी ये सीईओ हैं फार्मीवो के। तो ये मेरे साथ मिलके पूरा जो डायलॉग होगा, जो क्वेश्चंस होंगे उनको मॉडरेट करेंगे और आखिरी में फिर हम समरी शेयर करेंगे। आज का हमारा फॉर्मेट एक और ये है कि जूम पे हमारे पास बहुत कम तादाद में हमने लोग रखे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस, लेकिन जो मेन हमारा ये आज का सेशन है ये फेसबुक लाइव है। इस वक्त नटशल कॉन्फ्रेंसेस पे आप जा सकते हैं। नटशल कॉन्फ्रेंसेस आप अगर टाइप करें फेसबुक पे तो हमारा ये पेज स्टार्ट होगा जहाँ पर ये लाइव कवरेज इस वक्त हो रही है। तो वहाँ पे हमारे फ्यू थाउजेंड मेंबर्स जो है वो इसको अटेंड करेंगे। तो जो आज का बॉटम लाइन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी नजर में था, जिसमें से हमने ये इनिशिएट किया कि हम एक बिजनेस क्रिएट करें लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, कि पैनिक की जरूरत नहीं है और बाकी क्या चीजें करनी है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर साद नियाज, कि डॉक्टर साद नियाज, देन डॉक्टर प्रोफेसर सईद एंड देन प्रोफेसर जुबारी, 8 minutes each. So over to you, Dr. Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Aswa, thank you so much. आपने मुझे opportunity दी. And there is a lot that I'm sure I will learn because Dr. Bari and Dr. Saeed Qureshi both are here. I'm a bit confused. Let me start by saying this. What I'm not sure about is that do we really value human life in our society? Is it something that we should value or is it not? And I think Sara jo hamara whatever else we're going to do will depend on the answer to the question. ठीक है? Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu said, when he was the Khalifa, he said that if a dog dies near River Furat, Allah will ask him a question. We're talking about animals here. Whereas here we seem to be confused, to be honest, as I see it. So we all know about the numbers. I'm sure you all know more than me and a lot of doctors, because we know we have crossed 150,000 in Pakistan. And we expected that this is probably going to happen. But let me take you a little bit quickly to the past. First case, February 26th. December to February, we had time to prepare. December and China, and we knew that we have people in China. We also knew that Iran ka shuru ho gaya. We knew that people were in Iran. And I think more proactive measures should have been taken. We had 2 months to do it. And so I think it's important to go back and look at where we could have done more, because now we need to plan as to what we're going to do in the future. The numbers started rising, but our policies again reflected our thinking that we were told, or we expected, that hot weather, immunity and all is going to save the subcontinent. And that was the general feeling, and that's why I think there was a little bit of malaise as I see it. Total confusion as to whether there should be a lockdown, there shouldn't be a lockdown. There was issues, political issues between the government, provincial government. Is this a serious problem, or it is just simple flu which has been, blown out of proportion by medics and WHO, etc.? What is more important, economy or human life? Or can we do something to save both? So April 23rd, just before Ramadan, some of the doctors, we went and we thought that Ramadan is coming. The numbers suddenly started rising. And we realized that our critical care facilities in Karachi were actually saturating. And so we went out and we did that press conference, for which we were labeled many things, and I won't go into that.
But what we did was we warned the government. We warned the federal government, we warned the provincial government, and we warned the people of Pakistan. At that time, we had 95 beds, and we are talking about 23rd April. The preparation, according to the government, started in January. In 4 months, in city of Karachi, which is 20 million, we had 95 critical beds or thereabouts. To be fair, the Chief Minister Sindh was the only person I personally can tell you said, I am going to do, and I'm sure Dr. Bari here would vouch, I will do what the doctors tell me to do, which was very heartening. However, mid-Ramadan, we had an announcement from the government that the construction industry should be open. Last 10 days of Ramadan, we realized without Eid shopping, this country will collapse. So we opened everything. Yawm Ali was allowed, and everything else without SOPs. And so after Eid, where we are today, is not a good scenario. We were 50,000 on May 22nd. We were 8th June, 100,000. And today is 17th, 9 days, we are 150,000. So first 50 took a lot of time, second 50 about 2 weeks or so, and the third 50 has taken 9 days. So to me, after this increase, which was expected, and knowing the Pakistani population, there was a reaction. And we saw it on the television, which led to a serious problem with the morale of the health service workers, be it nurses, staff, doctors, whoever. There were security issues. While the health system was burdened, despite increase in the beds, but most of us would agree that they were not enough. Despite increase, the burden was so much. Along with this, there was this insecurity. Along with that, there was lack of PPE. I was watching yesterday cabinet meeting, and I saw many of the cabinet members wearing N95 or KN95 masks, whereas a lot of people in the hospital don't have it. Everybody was about 6 feet away or whatever, 4 feet away. So PPEs were not as much as we needed. And so the doctors was expected to actually fight this battle while everybody else told us that, listen, we can't listen to you because you have no idea about economy. We can't listen to you. And I was told yesterday, I heard the government representatives say that the doctors will only call for lockdown because they can only see what medical issues are. They can't feel the pain of the poor people. I can only laugh at that or feel disappointed with a senior member of the government saying something like that. The senior member of the government's projections is 1.2 million by August or end of July. 1.2 million, and one of the epidemiologists in Aga Khan with the program 2 days ago with me said that at least for every one positive, there are at least 8 to 10 we are missing. So if I was to take his figures, 1.2 million, and multiply it by even 5, you're looking at 60 lakhs. And 60 lakhs, if you take 1%, only 1% having serious disease or requiring critical care, that would be 60,000. We or anybody else probably in the world would not be able to take that. And certainly we were bad. Now coming back to what can be done. The first and most important thing I think is to change the thinking. Is human life important? And if it is, then we will do whatever we can to save even one person. If that's the aim, then our policy would be different. We need to address the people of Pakistan and tell them that, look, you need to be sensible, and we know how sensible they are going to be. We have experienced, we know what has happened in the last 2 weeks. So to rely too much on that, I don't think would be sensible. What else can be done? The WHO and a lot of people are saying that a lockdown for 2 weeks, followed by opening of 2 weeks, followed by lockdown again, is sensible. Now, why do they say that? Because they think that our health system is completely overwhelmed. It's almost full to capacity. To increase this, you need to have staff. You need to have more beds. You need to have logistic support. You need to have fresh people. Medical personnel are getting exhausted in every hospital.
And so we need to give them some breathing space. The 2 weeks lockdown that I think and I support will give the oxygen that is required for the health system, and also to the government to increase the support system. Hospitals will have to be converted into COVID hospitals, the large teaching hospitals. Now it's time to actually forget about the discrimination, because I don't think we'll be able to do that after 4 weeks maybe. And I feel very strongly that we need to go back to the bigger hospitals. Bigger hospitals needs to be converted and supported. One of the things that happened in UK is oxygen. They ran out of oxygen, so they were rationing in UK. I was talking to a colleague of mine, found out that two of the oxygen plants that we have are not actually working at the moment. And we have a shortfall of 200 tons at the moment looking at our capacity. So we need to work at that. We need to work at focusing on the health services. If we want to save thousands of lives, there is a prediction by Imperial College, which has been overruled by the government. And I say, fine, even if they are 10% right, we are looking at catastrophe, and it's a doomsday scenario if we don't act today. We need to be on one platform as a nation. We are fighting a war. We cannot have political differences disturbing this fight, like we would be doing that in a war. A friend of mine, I'll close with just one remark, and that is a friend of mine who's a businessman. He told me, look, you are doctors. You took this profession knowing very well that, there are going to be hazards. I said, yes. You see, what the army cannot say during wartime, we won't fight. I said, when the army is going to war, they're not going to you're not going to argue with them when they tell you to shut everything. You will not. You will listen to army when we are at war. Similarly, today, you have to listen to the health sector. And I think if they do, we still will be able to salvage something out of it. However, no matter what we do, we are in a difficult situation, and we as a nation have to stand together to fight this. Thank you very much. Thank you, Dr. Saad Khalid Niaz, for your opening thoughts. And a few new members also joined on Zoom, and Facebook Live is also in process. So many new members joined. So I want to repeat the format that first was Dr. Saad Khalid Niaz. I'm requesting Dr. Saeed, followed by Dr. Abdul Bari Khan. And this will be followed by interactive discussion with all three panelists. So my request to Dr. Saeed for their opening thoughts for 8 minutes. Dr. Saeed, please, over to you. Right. Thank you for asking me to be a part of this webinar. COVID-19 is now rampant in Karachi and elsewhere also in Pakistan. And the nation is going to take its toll. Earlier on, we used to have 5 to 7 positivity in our COVID testing. Then, on an average, over the last 3 to 4 months, it was roughly 29%. But now we are seeing almost 45% of the persons who are tested turn out to be positive to COVID-19, and that is not good news. As far as our system, which comprises of the Ojha campus of the Dar University and the civil hospital in the center of the city, they are inundated with patients. And as soon as the bed becomes available, another patient just comes in into that bed. What needs to be done is for the government to sort out. And now we have tools which define what is the number of afflicted persons in a certain area. And if the Prime Minister is not ready for a general lockdown, at least those areas need to be closed down and closed down tightly by not allowing anybody to come in or get out of that area.
Ventilators, there was a lot of concern about ventilation. Well, some ventilators have come in, but mechanical ventilation is not an answer to treating this disease, and non-invasive methods of ventilation are considered to be much better. And it has been seen that patients tend to improve on these systems. There has been an expansion in bed capacities, in especially beds which can be used for high flow oxygen through nasal cannulae. At the moment, we are in the process of adding on a 50-bedded hospital and another 200-bedded hospital to the government system. And I hope after these come online, which should be by the end of this month, things will improve as far as the overall number of beds is concerned. But even after these, the situation is going to be tough for the hospitals, tough for the doctors, and the going is not going to be easy. Various medications have been experimented with, but unfortunately, these have not been very successful. Convalescent plasma therapy has been tried out, but again now it has been, the health ministry has stopped because the results, rather than improving the situation, in fact, the situation was deteriorating. We have isolated immunoglobulins against COVID-19 in our labs. And now, in fact, we have some preparations available. And this week, we will be trying it out clinically on some of the patients. So that's in a nutshell of what is the current situation in Karachi. Thank you. I think you can, Dr. Bari can probably take over. Thank you, Dr. Saeed. Now I want to request Professor Abdul Bari Khan, the CEO of Indus Hospital, for his opening thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to Asper and Nakshal and everyone for giving me the opportunity to speak on this occasion. You have made my life easy. Please speak loudly. You have made my life easy by asking Saad and Professor Sheikh Qureshi to speak before me. They covered almost everything. So we all know where we stand, and we have some pessimistic ideas, but we should be optimistic also. But I think so. The numbers which will increase, the numbers of bed will increase by some time, but I don't see that will be enough for that. And as Saad mentioned, there is a lot of shortage of oxygen. So we were thinking of coming up with some solution to home-based oxygen therapy for the patients. But when we contacted the gas companies, Pakistan Oxygen and Ghani, to my surprise, there are only 800 cylinders in Karachi. Only 800. So we, as you know, we are establishing SGU in Expo Center. So we were struggling to get a tank of liquid oxygen. So I had to use my muscles to get it done, and it was basically taken from an industry, and now it is implanted there. So that's an issue. But in crisis, there were some opportunities also because of sufficient and developed basically PPEs. The textile industry are now more into PPEs. We have the testing capacity have increased, but the only answer to this is, as Saad has mentioned, that it has to be locked down, a strict lockdown, and then as WHO recommended. But the important thing is everyone has to play its part.
no lockdown can stop it unless we are self-lockdown. Everyone have to look into a self-lockdown. They have to realize it, because the spread can only be prevented by if everyone just takes responsibility, be it the public, the government, the private sector, the public sectors, the media. So everyone has to play their role. This is a time where the nation has to be united. Everyone has to be united, and there should be clear-cut direction where we want to go. So, as I said, it is only. So, I think so. Most have been covered by Saeed Qureshi and Saad. It would be good to start interactive questions, I suppose. Thank you, Dr. Bari. Over to you, Jamshed, for a few questions. Thank you, Asfar. एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है बड़ी क्लियरली कि अब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ है ऑनेस्टली. शुरू में शायद पब्लिक ये समझ रही थी कि उसके पूरे ख़ानदान में मोहल्ले में किसी को नहीं हुआ है तो शायद ये कोई यहूदी साजिश है. अब हर मोहल्ले में और हर ख़ानदान में जो है कोई एक इन्फेक्टेड है और सम आर स्ट्रगलिंग. तो एक तो मुझे ज़रा साद भाई ये बताएं आप, सिंस यू बीन थ्रू विद दिस चैलेंज, के ये जो फियर फैक्टर है हमारे भी कुछ कॉलीग्स को और दोस्तों को हुआ है, तो एकदम जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट पहुंचता है तो इट्स अ डिजास्टर फॉर देम. तो उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, यू नो, सिविल सोसाइटी से एंड कॉमन पीपल. दे वांट टू अंडरस्टैंड कि उनकी फैमिली में भी हुआ है, उन्हें भी हो सकता है. तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? द मोमेंट यू लिसन अबाउट दिस न्यूज़ that your test came detected, so what did you do and how would you advise others? यार इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूं, मैं एक शेर इकबाल का पढ़ रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया. वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पे. तो थोड़ा सा फिक्र करने की ज़रूरत है उन लोगों को जो हमारा वतन चला रहे हैं. अल्लाह ताला हम पे रहम करे. मैं जब पॉजिटिव आया तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे 2 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, तो मुझे शक था कि ये ऑब्वियसली कांटेक्ट था. हमने एक पेशेंट किया था काफ़ी सीरियस, साथ ही लंबा केस भी हो गया था. तो टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी एज ग्रुप वो वाली है जिसमें कहा जाता है कि हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई ख्याल नहीं आया. तो मुझे पहली चीज़ ये हुई कि मैंने अपने सारी चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया जिन लोगों को कॉल करना था, सो दैट अगर मैं एक तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि मुझे खुदा के लिए एक बेड दिलवा देना जब मुझे ज़रूरत पड़े. तो सो दिस इज़ हाउ बैड इट इज़. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सही बैठे हुए हैं, बारी हैं, अगर आप हमें फ़ोन करें और कहें कि यार तुम किसी भी अस्पताल में एक बिस्तर दिलवा दो, तो चांसेस हैं कि 99% चांस है हम आपको कहीं ना कहीं से एक बिस्तर दिलवा देंगे किसी भी अस्पताल में. यहाँ पे मैं रोज़ फ़ोन करके, वो डॉक्टर साहब नाम नहीं लूँगा मैं उनको मैंने कहा हुआ था अस्पताल जिनका है कि भाई एक बिस्तर मुझे ज़रूर दिलवा देना, क्योंकि मैं देख रहा था कि बेड्स नहीं मिल रहे. दूसरा मैंने ये किया कि मैंने अपने जो मामलात थे ज़िंदगी के जो भी थे वो मैंने जिनसे सेटल कराने थे वो करके फिर मैंने पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया. एंड मुझे बेसिकली उससे वो गला और थोड़ा बुखार की कैफियत बेहतर हो गई थी. जब वो इतना सीरियस नहीं था तो मुझे एक बात का पता था कि 70% लोग जो उसमें या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या नहीं होते, और इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन है. आपके इस प्रोग्राम से पहले अभी मेरे पास फोन आया है 3 लोगों का, वन आफ्टर द अदर, जिनके टेस्ट पहले पॉजिटिव आए, फिर उनको कहा गया नहीं यार तुमने एक्स लैब से कराया, तुम वाई से कराओ, वाई से कराया वो नेगेटिव आ गया, अब वो कंफ्यूज है. तो मैंने उनसे कहा भाई आपने दोबारा कराया क्यों? एक दफा पॉजिटिव आ जाए अगर, तो प्लीज जो लोग सुन रहे हैं उसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करें, और चाहे वो नेगेटिव आए या ना आए, दोबारा आम आदमियों को दोबारा जरूरत नहीं होती. तो हमने एक काम ये किया कि पैरासिटामोल, नॉर्मल खाना, नॉर्मल सारी चीजें, फ्लूइड अच्छी तरह से हाइड्रेट करना, नींद का प्रॉपर ख्याल रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे बड़ा सुकून मिलता है कुरान को मतलब से पढ़कर, एंड मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन जिक्र भी कोई नहीं है. तो मैं उसको करता रहा और उससे थोड़ी सी तक़वियत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और अल्लाह से ताल्लुक भी बनता है. क्योंकि बहरहाल जो भी हो, ये बीमारी कहाँ से भी आई है, यहूदी लेके आए हैं, चाइनीज लेके आए
है या वैसी नेचुरल है, ये आई तो अल्लाह की तरफ से ना, बगैर अल्लाह की मर्जी के तो पता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह ताला जरूर हमसे कुछ नाला होंगे, नाराज होंगे, हमारी हरकतें, हमको खुद पता है कि डेक्सामिथासोन कल से गायब हो गई मार्केट से, ये तो हमारा हाल है। और लोग जो बिल्कुल ठीक है वो डेक्सामिथासोन लेने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने फिर एक वीडियो भी बनाई, और वीडियो बनाई इसलिए कि मुझे लोगों ने कहा कि आपने क्या किया, जैसे आपने सवाल किया, तो मैंने कहा मैंने तो कोई टोटका नहीं। फिर मुझे पता चला एक सना मक्खी का, मुझे मेरे घर में शाम तक सना मक्खी के 2 मुझे पत्ते लेके घर पे कोई छोड़ के भी चला गया। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला ये तो सेना है, और सेना इज अ लेक्सेटिव। तो मैंने कहा ये लेक्सेटिव मुझे क्यों दे रहे हो भाई इस बीमारी में, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने निकाला उसमें मक्खी वो कैसे हो गई, क्योंकि ये तो इजिप्शियन ने भी इस्तेमाल की है, तो ये मक्का से तो स्टार्ट नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की थी, और बेतहाशा मशवरे मुझे मिले। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये आई थिंक आई नीड टू गो आउट एंड टेल पीपल यार 70% लोग खुद से ठीक हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैरासिटामोल की जरूरत है, नॉर्मल घर में रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, एंड दैट्स इट। एंड उसी से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और ज्यादातर लोगों का यही मसला है। और ना मैंने मुझे टेस्ट दोबारा कराना जरूरी है। हेल्थ सर्विसेज वालों को अभी रिकमेंडेशन ये है कि 2 टेस्ट हमारे 48 आवर्स अपार्ट होने चाहिए, लेकिन आम आदमियों के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप दोबारा टेस्ट कराएं। ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स है हमारे सिस्टम पे, जिसपे ऑलरेडी कम टेस्ट हो रहे हैं, उस पर एक एक्स्ट्रा दबाव है, और आप गैर जरूरी धक्के खा के वहां जाके लोगों से लाइनों में लगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज से बिल्कुल परहेज करें, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। जिसको बुखार हो, ज्यादा हो रहा है, जिसको ज्यादा तकलीफ है, खुदा न खास्ता सांस का मसला है, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इस किस्म की दूसरी चीजें, वो जरूर किसी डॉक्टर से बात कर ले। जैसे डॉक्टर बारी ने कहा, तो आई एम श्योर डॉक्टर सईद भी है, मैं भी हूँ, डॉक्टर बारी हैं, और भी जो डॉक्टर्स अगर हो, हम सबके पेशेंट्स इस वक्त घर पे हम मैनेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि हम सिर्फ उन लोगों को अस्पताल लाएं जिनको वाकई जरूरत है। प्रोफेसर, मैं नाम लेके बताऊंगा, प्रोफेसर यूनुस सुमरो हमारे उस्ताद हैं, ऑर्थोपीडिक के मशहूर सर्जन हैं कराची के, पाकिस्तान के। प्रोफेसर यूनुस सुमरो को 24 घंटे ईआर में लेटना पड़ा था बेड मिलने से पहले। ये इसके बाद की बात है कि जब वो उस हॉस्पिटल के सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ओनर सब साथ खड़े हुए थे। तो आप प्लीज इस वजह से, जो डॉक्टर बारी ने कहा, सईद साहब ने कहा कि हमारे नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो लंबा जवाब हो गया, बट आई कवर्ड अ फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक वेरी रेलेवेंट। और ये जो सनाए मक्की में मेरे एक कॉलीग थे, उन्होंने बल्कि ये लिया और ही गॉट डायरिया एंड देन डिहाइड्रेटेड एंड फर्दर डिटोरिएटेड। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि विदाउट कंसल्टेशन, और टोटकों पे मेरा ज़्यादा क्योंकि एनेक्डोटल है तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो पैनाडोल और ये जो आपने बताया दैट्स बेस्ट थिंग। डॉक्टर बारी, एक ऑक्सीजन के हवाले से आपने खौफनाक खबर सुनाई है, और मेरी भी बात हुई थी पाकिस्तान ऑक्सीजन के सीईओ से, तो वो ये भी बता रहे थे कि शायद एनडीएमए ने सारे इनके स्टॉक्स जो है ना वो अब कंट्रोल में लिए और वही एलोकेट कर रहे हैं। तो अब ये जो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और वो हॉस्पिटल का बेड भी नहीं मिल पा रहा, तो क्या करना चाहिए एक रिसोर्सफुल आदमी भी और कॉमन मैन को, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? एक तो मैं एक चीज के ऊपर करूंगा, जो भी रिसोर्सफुल लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है ना हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर कुछ जो ये जो सिलेंडर्स और लेके घर पे रख लिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो। बहुत सारे जो आपके सिग्नल शायद अनस्टेबल हो रहे हैं बारी भाई, तो लेके रखे हुए हैं, घर पे रखे। तो मैंने कहा कि जो अपना लोगों ने जो सिलेंडर्स लेके हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर घर पे रख लिए हैं, कोई अभी पॉजिटिव कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने शायद पल्स ऑक्सीमीटर काफी लोगों ने रख लिया है, और कुछ मैंने सुना था किसी ने वेंटिलेटर भी लेके रखे हुए हैं। तो देखें, ये ऐसी चीज जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं मिल रहे। अभी हम कुछ, क्योंकि पिछले दिनों में जब ये अंदाजा हुआ था तो हमें अंदाजा ये था कि एचडीयू बेड्स की जरूरत है, और डॉक्टर सईद भी और इसका मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त तकरीबन समझे 136 वेंटिलेटर्स है कोविड के लिए पूरे कराची में, लेकिन उसमें से 50% में पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, बाकी 50% खाली है, लेकिन बेड पे मरीज लेटा हुआ है। तो किसी और को मैं वहां अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो आप उस पर नहीं लगा सकते। तो फिर हमने बड़ी कोशिश करके कि एचडीयू बेड्स को बढ़ाएं, जैसे सही साहब ने बताया कि इस महीने तक और आ जाएंगे।
क्योंकि हमारे पास इस पर लग्जरी नहीं है कि हम आईसीयू बेड को खाली छोड़ सकें, क्योंकि मरीज के लिए जगह नहीं है। जैसे ही साहब ने कहा अभी, साद ने कहा कि इमरजेंसी, इस वक्त हमारी इंडस्ट्री इमरजेंसी में 12 बेड है, 18 लोग लेटे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी जो 2-3 दिन से लेटे हुए हैं कि आगे बेड खाली हो तो अंदर जाएंगे, या कहीं और जगह हो तो मैं उनको मूव करूं। ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहा है। कभी पता लगता है कि एक बेड खाली हो गया और मैं फोन करता हूँ कि कोई सी मरीज है, उन्होंने कहा जी वो तो चला गया, भर गया, जैसे कुछ सेकंडों के लिए या रादर कुछ मिनटों के लिए ही खाली रहता है। तो ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि हम लोगों को आगे के, आज मेरी चेयरमैन एनडीबीए से कराची आए हुए थे, उनसे मीटिंग भी थी। उनसे हमने यही कहा था कि सिलेंडर्स आप कहीं से पैदा करें, इंपोर्ट करवाएं, चाइना से मंगवाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान में होते नहीं है। पहले कुछ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से आ जाते, वो बंद पड़ी हुई है तो वहां से भी नहीं मिलते। जहाज एडी के पास कोई सिलेंडर नहीं है, अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास भी नहीं है। तो सिलेंडर के लिए कुछ दुनिया में लोग सुन रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, जिसको जमशेद साहब मैं इसमें ऐड करूंगा एक, प्लीज। ये 3 महीने तो पहले आप कह दे, ऐड करें। हाँ, मैं ये कह रहा था करीब कुछ महीनों पहले की बात है जब मेरी बात हुई थी उन लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल क्या है CDA, एंड हमने ये सवाल ये एक 2 चीज़ें एक सवाल किए थे मैंने। एक ये ऑक्सीजन का, बिकॉज मुझे इंग्लैंड से ये खबर आ रही और मुझे अंदाज़ा था कि अगर वहाँ पे कमी होगी तो हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है डिमांड बढ़ेगी, और अभी तो हमारी डिमांड वहाँ नहीं पहुँची जहाँ लोगों का अंदाज़ा है पहुँचेगी। दूसरा जो चीज़ थी वो थी इसी तरह स्टाफिंग के भी एक इशू पूछा था कि हमने क्या आपने एक नेशनल डेटाबेस बनाया है कोई, तो उसका भी जवाब मुझे यही दिया गया था कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। So those 2 things, they were warned and they were informed. What they've done about it, God knows. बारी साहब ने आज NDMA से मिले तो उनको अंदाजा होगा कि क्या करना है, लेकिन आई एम सॉरी बट ये सारी चीजें नजर में लाई गई थी पहले। बारी भाई, कुछ आज लगा आपको कि NDMA थोड़ी अवेयर है सिचुएशन से कि किधर जा रही है? अवेयरनेस तो है, लेकिन बात ये है कि लॉजिस्टिक्स जो है ना, इस वक्त पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है और हर एक को अपनी अपनी फिक्र है, कोई इंपोर्ट्स नहीं हो रही है। लेकिन ये बात जैसे एक और बहुत अहम बात जो कि जिसकी ज़रूरत है वो ये कि कोई सेंट्रल कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है कि जहां पर, क्योंकि देखें मुझे कोई जानता है, साथ को कोई जानता है। अरे भाई, आपके सिग्नल अनस्टेबल हैं तो आवाज चली गई आपकी। है वो जी आपको जो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी जी। तो मैं यही कह रहा था कि कोई एक सेंट्रल नंबर हो जहां से आम आवाम को जो है ना एक्सेस होना चाहिए, कि अगर किसी को कोई भी बीमार हो किसी जगह पर भी, वो वहाँ नंबर फॉरवर्ड करे तो उसको पता, वहाँ वाला उसको गाइड कर सके, जी आप सिविल अस्पताल चले जाएं, आप ओजा चले जाएं, आप इंडस चले जाएं, या आप जिना चले जाएं। तो वो, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स, आप डॉक्टरों से जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं उनको तो वो ढूंढ ढांड के कर लेगा, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई सेंट्रल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू वारी भाई। डॉक्टर सईद, आपसे, सिंस यू आर अटैच्ड विद एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो टीचिंग हॉस्पिटल, तो ये जो वैक्सीन का सफर है ये कहाँ तक पहुंचा है? और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो भी शॉर्ट हो गई होगी अब मार्केट में कि स्टीरॉइड्स जो हैं वो डेक्स्ट्रोमेथासोन ये ब्रेक थ्रू थेरेपी है जो ऑक्सफोर्ड ने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया है, तो इस पे आपका क्या कमेंट है और इसको पब्लिक कैसे क्या समझे इसके बारे में? जहाँ तक कि डेक्सामेथासोन का है इस्तेमाल, वो तो हम लोग पहले शुरू से ही कर रहे हैं। ये तो एक स्टडी अनाउंस की गई है, ये यानी कि प्रॉपरली क्लिनिकली डिजाइन्ड स्टडी में क्या गया है। लेकिन एम्पेरिकल यूज तो डेक्सामेथासोन का बहुत पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है, और हमारे पास जो है आईसीयू में हम इसका शुरू दिनों से हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं, हमारे क्रिटिकल केयर के लोग। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वैक्सीन तो अब जब एस्ट्राजेनेका इसको तैयार करेगी तब मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। अब फोर फ्रंट पे तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका हैं जो मिलकर ये वैक्सीन को प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरे लोग भी हैं जो वैक्सीन के ट्रायल्स करना चाह रहे हैं। एक हैं रिसर्चर लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में यूके में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि हम उनके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में करें, लेकिन वो बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी दुनिया कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन तैयार की है वो कब मार्केट में आती है। अगर आप स्टेरॉइड्स की बात कर लें, ये बीटामिथासोन की थोड़ी सी और बढ़ा दें अगर, जमशेद साहब। जी जी प्लीज। ये जो सईद साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, ऑलमोस्ट सारे क्रिटिकल केयर पेशेंट्स में ये मिल रही है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये डेक्सामेथासोन कोई स्टेरॉइड्स की ही एक किस्म है। तो चांसेस हैं कि ये क्लास इफेक्ट है, यानी कि कोई भी जो स्टेरॉइड्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट लाइकली फ़ायदा पहुंचाएंगे। और ये मखसूस, ये बिलखुसूस सिर्फ डेक्सामेथासोन का नहीं, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, इसी पेपर में ये कोविड-19 का ही कमाल है कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने इस पेपर को अभी कंप्लीट होने से पहले बता दिया है। हालांकि अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप क्रिटिकल केयर के पेशेंट को देखें अगर जो मरीज जिनकी वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको 25 को ट्रीट करना पड़ेगा एक को फायदा पहुंचाने के लिए। और अगर आप वेंटिलेटेड पेशेंट्स को देखें तो एक जिंदगी बचाने के लिए 8 लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इस स्टडी की जो मैं समझता हूँ इफादियत वो ये है कि पहली दफा किसी चीज ने कोई पॉजिटिव दिखाई है, लेकिन ये कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है जिस तरह, क्योंकि ये कोविड-19 इतना सोशल मीडिया की चीज हो गई है कि ये भी आ गया है। बट आई एम श्योर सईद साहब वुड आल्सो एग्री विद मी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी इस किस्म के पेपर को हाफ वे कभी इस तरह शेयर मेरे ख्याल में शायद ना करती, मुझे याद नहीं है कभी किसी, बड़ी सारी ब्रेक थ्रूज भी हैं लेकिन बीच में कभी नहीं हुआ। तो लोगों को ख्याल करना है कि ये ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी साद भाई, एक बात और इसी हवाले से मैं पूछ लूं कि ये ड्रग्स बार बार शॉर्ट भी हो जा रही हैं, जैसे रेमडेसिविर अगर हम एंटीवायरल्स में देखें, मैप्स को देखें, तो इसका जो इफेक्ट है अभी तक आप लोग की क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या आ रहा है, ताकि इतनी महंगी भी है और पेशेंट एकदम समझता है कि ये मिल गई तो जान बच जाएगी। इज दिस ट्रू परसेप्शन? दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनकी NIH की US की साइट पे जाएं तो इन सब दवाओं के साथ, इन सारे ट्रीटमेंटों के साथ लिखा हुआ है अंडर ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, पहली चीज। रेमडेसिविर के पे आ जाते हैं। रेमडेसिविर का फायदा ये है, जो अभी जो प्रॉपर एक स्टडी जो डिसेंट आई है उसके हिसाब से सिर्फ एक फर्क है, जिन लोगों को रेमडेसिविर दी गई वो 4 दिन पहले बेहतर हो गए, यानी 11 दिन में वो बेहतर हो गए और 15 दिन में दूसरे हो गए। लेकिन जिंदगी पे इंसान की कितने बचे या कितनों को जिंदगी बचाई गई वो 0 फायदा है। ठीक है, उसी ट्रायल में। सो पहली चीज तो इसको ये समझना कि बस सब बच जाएगा, दैट इज नॉट राइट। जिस वजह से लोग बचते हैं वो प्रॉपर क्रिटिकल केयर से बचते हैं, जो सईद साहब ने और बारी ने पॉइंट उठाया था। हमें आप वेंटिलेटर तो लगा लें, लेकिन अगर आप वेंटिलेटर के साथ एक्सपर्ट्स उन लोगों को वो नहीं होंगे जो वेंटिलेटर को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, तो फिर वो आप जो फायदा आपका क्रिटिकल केयर का या वो है वो आपको सही नहीं मिलेगा। रेमडेसिविर ले आप, टोसी ले लें, ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंटल। प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट आउट। जितना हंगामा इन्होंने किया, मतलब हमारे मुल्क में हुआ उतना शायद कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन उसको उस वक्त भी कहा जा रहा था ये उसकी इफादियत 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, दोनों में कोई इफादियत नहीं, बल्कि कॉकरेन विच इज वन ऑफ द बेस्ट, वो कॉकरेन एनालिसिस में उन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि इसका कोई एडवांटेज नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान का ट्रायल भी आ जाए, उसमें अगर थोड़ा बहुत एडवांटेज आ भी जाए तो इट्स नॉट अ लाइफ सेवर। सो यहाँ लाइफ सेविंग की जो बात कर रहे हैं उसमें आपकी वो क्लोरोक्विन जैसी आई थी वैसे उड़ गई। तो आपको ये समझना है कि अस्पताल जाके जो अस्पताल का इलाज है, पेशेंट की जनरल कंडीशन को मैनेज करना, उसको ऑक्सीजनेशन किस वक्त तक जानी है, वेंटिलेशन करना है, नॉन इन्वेजिव जैसे सही साहब ने कहा तो कोशिश करनी है नॉन इन्वेजिव हो जाए, अगर इन्वेजिव चली गई तो इन्फेक्शन कंट्रोल, इन सारी चीजों को देखना है। और मसला सारा एग्जॉस्शन का है। देखें, मैं एक सजेशन देने वाला था गवर्नमेंट के लोगों को जो समझते हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है डॉक्टर्स का, कि सिर्फ 6 घंटे के लिए PPE पहन के कैबिनेट के लोग एक कैबिनेट की मीटिंग कर ले अपने ही एनवायरमेंट में, वहां ना जाए कोविड में, उसका रिस्क नहीं देते हम उनको, लेकिन वहां बैठ के एक मीटिंग कर ले तो उनको अंदाजा होगा कि इसको पहन के
कितना मुश्किल होता है। कल मेरी दिल्ली में बात हुई है तो उन्होंने कहा हमने अपने टाइमिंग्स को शॉर्ट कर रहे हैं, हमने इसकी 4 आवर शिफ्ट कर दी है, बिकॉज 6-8 घंटे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, गर्मियां भी बहुत हो गई हैं। तो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डॉक्टर्स की फटीग या टेक्निकल मेडिकल स्टाफ की फटीग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये उस वक्त हो रहा है जब हम जो ग्राफ अभी हमारा पीक का शुरू हुआ है हम उसके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, अभी हमने ऊपर जाना है, ये सब मान रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक बहुत बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कराची, लाहौर, पेशावर इन शहरों को लॉकडाउन करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कराची के अंदर 5 इलाकों में करें, कराची में तो कोई इलाका ऐसा है नहीं जहां पे नहीं है कोविड। तो मुझे समझ में ये चीज मेरी नाचीज अकल में नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर बारी भाई और अपना सईद साहब जो है इस पे लाइट डाल सकते हैं या कोई और। जी डॉक्टर सईद, मेरे ख्याल में डॉक्टर बारी अपना माइक शायद फिक्स कर रहे हैं, शायद आवाज उनकी ठीक आए। तो एक बात जो डॉक्टर सही जरा बताइएगा डाओ ओझा के हवाले से भी, कि बेड एक बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और साद भाई ने भी बताया कि डॉक्टर यूनुस सोमरो को मतलब कितनी मुश्किल 2 दिन के बाद बेड मिला, तो आप समझ लें कि हमारा क्या हाल होगा। और सिंस इट्स कमिंग इन ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीट, तो हमारे पास भी रोजाना कॉल आ रही हैं। तो कब ये सजेस्ट करना चाहिए, या एक यहाँ पे हमारे पास सिविल सोसाइटी बैठी हुई सारी, तो कब ये कोशिश करना चाहिए कि अस्पताल चले जाएं, किस लेवल तक हमें घर पे ही मैनेज करना चाहिए इस कोविड-19 को? मेरे ख्याल से जब ये एहसास हो कि सांस में लेने में कुछ दुश्वारी हो रही है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये तो एक होगा। और दूसरा ये कि जो आसपास में लोग हैं वो देखें कि किसी मरीज को गुनूदगी होना शुरू हो रही है, तो ये भी एक रीज़न होगा कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। अगर बहुत ही हाई फीवर है और कोमॉर्बिड्स हैं साथ में, तो उसे हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है कि जाए, लेकिन उसको मेडिकल केयर के अंदर रहना चाहिए। जैसा ये डायबिटिक्स हैं, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है जिन लोगों को, और उसके साथ कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जी थैंक यू साद भाई, आप माशाल्लाह जवाब भी बड़े थोरो दे रहे हैं, तो बार बार मैं सवाल आप ही की तरफ फेंक रहा हूँ। तो ये बताइए कि जब एक फर्द आज पॉजिटिव हो जाता है और वो आइसोलेशन कंप्लीट करता है 14 डेज पे, वो पॉजिटिव दोबारा टेस्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाना है और उसको नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जाना है तो वो एंटर हो सकता है। तो वो 14 डेज पे टेस्ट कराता है विदाउट सिम्टम में, 3 दिनों से फिर पॉजिटिव आ जाता है, फिर वो आइसोलेट रहता है, फिर 21 दिन पे वो टेस्ट कराता है, फिर पॉजिटिव पीसीआर आता है। क्या करना चाहिए उसको? अब ऑर्गेनाइजेशन भी अजीब परप्लेक्सिटी में चली गई है कि ऐसे लोगों को इन करें, आउट करें, होल्ड करें। आप एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देंगे इस पे? इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि एक स्मॉल परसेंटेज लोगों की ऐसी होगी जिसमें वायरस डिटेक्टेबल होता है बट सर्टेनली अलाइव नहीं होता, ठीक है। तो अगर 14 दिन, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को एसिम्टोमेटिक था, जैसे मैं अपनी बात ले लेता हूँ, 2 दिन मुझे थोड़ा गला खराब, बुखार हल करा, उसके बाद मैंने 10 दिन आई वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड, ठीक है। अगर मैंने 14 दिन मुकम्मल कर लिए होते और मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में होता जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मुझे कोई टेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं है, WHO की भी रिकमेंडेशन अब नहीं है कि आप बार बार टेस्ट करें, आप अपने नॉर्मल जाके अपना काम वगैरह शुरू करें। लेकिन जो चीज हमें नहीं पता वो ये नहीं पता कि क्या हमें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके होने के बाद अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है इसके होने की दोबारा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये नहीं हो सकता। और हमें अभी ये भी नहीं पता जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कब तक इफेक्टिव हैं, वो पहली चीज इफेक्टिव है, दूसरा वो कब तक इफेक्टिव रहेंगी। वी डोंट नो दीज आंसर्स फॉर नाउ। सो इसी वजह से हर जगह से रिकमेंडेशन ये है कि आप ठीक होने के बाद भी अपनी एहतियात वैसे ही रखेंगे जैसे पहले थी, तो उसमें कोई तब्दीली लाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो इदारे आप बता रहे हैं, बिजनेस के इदारे, वहां पे वन शुड गो आफ्टर 14 डेज, यूजुअली 7 डेज ऑफ एसिम्टोमेटिक। 7 दिन तक अगर आदमी एसिम्टोमेटिक यानी उसको कोई बुखार कुछ भी नहीं है, उसके बाद ही शुड बी एबल टू गो आउट एंड बी नॉर्मल, एंड उसका रिस्क मतलब मेरे हिसाब से और कम ही होगा। इसमें एक और चीज लोग बहुत कर रहे हैं, वो है एंटीबॉडी। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसको हम अभी कवर कर सकते हैं या किसी और का कोई सवाल होगा तो फिर।
नहीं कर लें, इसमें अच्छा है, ये सवाल आया भी है, मैं इन्हीं सवालों में से असल में पिक करके दे रहा हूँ। एंटीबॉडीज का मामला ये है कि एंटीबॉडीज दो किस्म की होती हैं। एक वो एंटीबॉडी होती है जो अक्यूट इन्फेक्शन, यानी जिस वक्त मेरा ये पीसीआर पॉजिटिव आया उसी के 5-7 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव होती है, जिसको हम आईजीएम कहते हैं। और एक एंटीबॉडी वो होती है जो आईजीजी होती है, और वो जिस्म में रहती है लंबे अरसे। आईजीएम आती है, चली जाती है, और आईजीजी रहती है। आईजीजी हमें ये बताती है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आपको किसी का आईजीजी पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब उसको खामोश। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, उनको कोविड हुआ और वो ठीक हो गए। मेरा बेटा इंग्लैंड में काम कर रहा है, वो कोविड वार्ड में काम कर रहा था और उसको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, लेकिन उसने जब अपना आईजीजी का टेस्ट कराया तो उसका पॉजिटिव आया। इसका मतलब उसको जरूर हुआ था, ठीक है, किसी वक्त, लेकिन उसने एहसास नहीं किया उसका। इसी तरह बहुत लोग माशरे में, आपको मैंने कहा 70%, 60% लोगों को नहीं पता चलता। तो ऐसा होगा कि आईजीजी पॉजिटिव हो जाए, उसका फायदा सिर्फ इस हद तक है कि आपको पता चल गया कि आपको हो चुका है और इम्कान इस बात का है कि इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। लेकिन आईजीजी आईजीएम के टेस्ट को एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, यानी आप पीसीआर की जगह ये करा लें, उसकी अभी तक कोई सनद या उसकी कोई वो नहीं है सपोर्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये आईजीजी और आईजीजीएम के हवाले से, आईजीजी के हवाले से बहुत कम लोगों को पता होगा, आपने बड़ी अच्छी इसकी क्लासिफिकेशन की। काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं तो मैं उसमें से पिक करता चला जा रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत तेज़ी से सवालात आ रहे हैं। एक बात जो आपने कही है डॉक्टर साद के अगर एक दफ़ा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो या पॉजिटिव आता है तो दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्द को कोई सिम्टम नहीं आए हैं लेकिन उसके घर में सब लोग पॉजिटिव हैं और वो बगैर सिम्टम के चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको सिम्टम नहीं है तो वो दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि कांटेक्ट में तो रिकमेंडेशन है उसका, क्योंकि घर में सबको हो गए तो उसको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि उसने बहरहाल बाहर निकलना है, उसने कहीं जाना है काम करने, तो वो एक रिस्क बता सकता है आदमी, खास तौर पे अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ज्यादा लोग हो, तो आई थिंक उस हिसाब से उसको कर लेना चाहिए। और अगर उसका टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है और उनका टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो वो अपना टाइम पूरा करके उनको दोबारा टेस्ट करने की जो चीज हो रही है ना यहाँ पे, वो मैं जिसको कर रहा था वो ये हो रही है कि आप एक टेस्ट कराते हैं ना तो आपका रिश्तेदार आपको कॉल करते हैं, यार तुमने जो है ना वो कौन सी वो साद लैब से कराया है, तुमने डॉक्टर बारी की लैब से नहीं कराया, पता है तुम्हारा पॉजिटिव गलत आएगा, कि मेरे जानने वाले का भी आया, उन्होंने बाद में डॉक्टर बारी की लैब से कराया और नेगेटिव हो गया। उसको मैं कह रहा था कि अगर एक दफा आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, उसको दोबारा कराने का कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर बारी, एक सवाल आया है कि जो ये अब्दुल बारी साहब से, कि बारी साहब से या साद भाई से, कि आज जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 10,000 बेड्स जो हैं अवेलेबल है पंजाब में। हालांकि हमें पता है कि पंजाब के किसी बड़े शहर में कोई बेड अवेलेबल नहीं है, कोविड बेड की बात हो रही है। इस पे आपको क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि ये पब्लिक में एक जो ना एकदम से आज शाम से थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुए कि ये क्या चक्कर है कि हेल्थ मिनिस्टर कह रही है 10,000 बेड, 10,000 बेड्स। सो इस पे मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ। जैसे मैं आज अभी यहाँ सिंध में ही बात कर रहा था, क्योंकि कोई डेटा मांगा गया था, तो सिंध में पूरे बेड, हॉस्पिटल बेड 21,000 हैं टोटल, तमाम हॉस्पिटल बेड्स, और उसमें से कोविड बेड कोई जो है ना वो तो कोई 2300 के करीब है ना, तो जो कोविड के लिए फिक्स्ड है। तो आप जैसे आपकी बात है कि लोगों को ये फीलिंग है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ बेड की बात आती है, चाहे वो कहीं भी पाकिस्तान में हो, इसमें इश्यूज हैं कि वो नहीं है जिसको कोविड बेड कह सकते हैं। देखिए, कोविड बेड के लिए एक नेगेटिव प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आईडीयूज वो हमारे हॉस्पिटल उस तरह बने ही नहीं है, चाहे पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी। प्राइवेट सेक्टर ने भी अभी जब कराची में भी जब उन्होंने शुरू में नहीं लिए थे मरीज, पहले उन्होंने प्राइवेट नेगेटिव प्रेशर्स बनाए और उसके बाद उन्होंने फिर शुरू किया था। एक और चीज थोड़ा सा साथ के उस सवाल के ऊपर जो कि पीसीआर पॉजिटिव के ऊपर बात आ रही थी लोगों की, कि जी पीसीआर पॉजिटिव आ रहे हैं 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद। जी एक क्लैरिटी है, जो पीसीआर है ना वो और जो ये रिकमेंडेशन चेंज हुई थी हमारी कि अब 10 दिन के बाद बगैर टेस्ट किए बाहर निकल जाए, एक्चुअली सीडीसी की गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने देखा था कि कुछ मरीजों के अंदर
कुछ जो कोविड अफेक्टेड थे उनके अंदर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद भी पॉजिटिव आ रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि 7वें दिन पे, 7 दिन के बाद उन्होंने वायरल कल्चर किए, तो 7 और 8 दिन के बाद वायरस ग्रो नहीं करता था, तो डेड वायरस था। पीसीआर जो है वो आरएनए डिटेक्ट करता है, आरएनए की वजह से पता लगता है कि वायरस पॉजिटिव है या पीसीआर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जब, और ये आरएनए डेड और लाइव दो वायरस पे होता है। तो जब उन्होंने देखा कि 7 दिन के बाद ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है और सिम्टम फ्री है। तो आज चाहे पॉजिटिव भी कुछ लोगों में आया, तो उन्होंने फिर रिकमेंडेशन चेंज की कि बगैर टेस्ट के आप, क्योंकि पहले 2 टेस्ट हुआ करते थे कि एक नेगेटिव आए तो उसके बाद 24 घंटे बाद दोबारा कराएं कि वो फिर नेगेटिव आए तो तब निकालेंगे। तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो इस किस्म के लिए रखी गई थी। इसमें असफर में कैन आई ऐड टू दिस बेड थिंग प्लीज प्लीज। कल मैं सुन रहा था गवर्नमेंट के, मैं विल टेक द नेम यार, असद उमर, कल वो कर रहे थे अपना, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया एक सवाल कि ये लोग, आपको जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब हम डॉक्टर्स को सुनते हैं तो लगता है कि ये तो मतलब हम किसी और मुल्क में रह रहे। तो ये आप दोनों मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा करीब आ जाएं आपस में? तो तो असद ने, उमर साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि देखें, जो बेड्स का मामला है, उन्होंने ये सवाल किया था बेड्स का हमारे, जो मेरे ख्याल में, मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, मतलब एक क्रिटिकल फीडबैक जरूर है कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे एमपीएस कराची के थे जिन्होंने जो है वो बहुत तमाशा बनाया इस चीज को। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये बिल्कुल एक आम सा बुखार है और तमाम चीजें, जो एक आपने एक नेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना था ना, वो जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो जिस तरफ से भी थे, कहीं से ज्यादा थे कहीं से कम थे, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ ये कि पब्लिक हमारी वैसे भी रिस्पॉन्सिबल है, बट आपने जब एक नेशनल एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं किया, एक प्रॉपर कैंपेन रन नहीं की, उसकी कोई स्ट्रेटजी आपने डेवलप नहीं की, उससे आज हम इस हाल में पहुंचे कि आज से हम 2 महीने पहले ये समझ रहे थे कि हम इस टाइम पे बेहतरी की तरफ से जाना शुरू होंगे, लेकिन आज ये लग रहा है कि पीक अभी नहीं आई है। इस पे आपका क्या ख्याल है कि पीक अभी कब आएगी? क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है? ऑफ कोर्स नो वन इज एबल टू फोरकास्ट, बट आपकी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, आप तीनों हजरात? मैं एक सेकंड के लिए असफर इसको कवर कर दूं, बिकॉज़ कल की जो बात थी ना, मैं इसको थोड़ा सा मुकम्मल कर लूं। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये आपके पास जो डॉक्टर्स आते हैं टेलीविजन वगैरह पे, ये सब बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, और ज्यादातर लोग बड़े अस्पताल जाते हैं तो इसलिए वहां पे बेड्स तो कम है, लेकिन वैसे बेड की कमी सिंध में भी कहीं किसी बड़े शहर में नहीं। अब ये एक बहुत बड़ा गैप है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर बारी सारे अस्पतालों को देख रहे हैं, सईद साहब पूरी यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं, ही इज गॉट, आई नो, कहते हैं ना उनके पल्स पे हाथ है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप क्या लोगों को ये बताएंगे कि जी हमारे पास अभी तो 70% खाली है। यार कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद सब खत्म हो गया। अब 70% क्या मतलब आदमी जो है रुतो डेर हो जाएगा इलाज कराने कराची से, या अगर वहां 2 वेंटिलेटर उन्होंने छोड़े में, थोड़ा सा सेंसिबल जो आपने बात की है सर, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जो मैंने पहले कहा था कि द लैक ऑफ विजन इज व्हाट हैज लेड अस टू रीच हियर। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी हेल्थ सर्विस बड़ी जबरदस्त होती और हम बड़े तीर मार लेते, लेकिन लैक ऑफ विजन की वजह से लोगों ने उस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन दैट यू जस्ट मेंशन्ड। So the peak, I don't know, peak is going to come in July. Everybody is saying that, but peak from Imperial College is different. Peak from Aga Khan statisticians is different, and peak from government is different. उन्होंने कहा हमारे experts हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से experts हैं, लेकिन वो peak आएगी जुलाई में। अब वो peak जब जुलाई में आएगी तो मुझे सिर्फ इतनी परेशानी है, और ये दोनों उसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये दोनों अस्पताल ज्यादा रन करते हैं। मेरा तो सिर्फ मेनली पटेल की मैनेजमेंट से ताल्लुक है। मेन इश्यू जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि आपकी जब पीक आएगी तो आपके पास बेड्स अगर आपने बढ़ा भी लिए भाई, तो आपके पास स्टाफ कहां से आएगा? कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो आईसीयू के टेक्स आईसीयू डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर देगी अगले 2 महीने में? ये तो काम करने का था जनवरी से, फरवरी से। आप इस चीज को पहले से बताते कि हमारे पास कैपेसिटी। अब सिवाय इस बात के, मैं समझता हूं कि पीक जुलाई में आएगी, सिवाय इसके कि आप बड़े बड़े अस्पतालों को कन्वर्ट करें, और बड़े बड़े अस्पतालों को कन्वर्ट करने के साथ साथ यू नीड टू गो बैक एंड वर्क ऑन मेडिकल मोरल। जूनियर डॉक्टर्स, मैं आपको बता रहा हूं असफर, मुझे जो अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मुझे डर इस बात का है
कि लोग रिएक्ट करेंगे अस्पताल में, डेथ्स बढ़ेंगी, जब डेथ्स बढ़ेंगी अस्पताल नहीं लेगा, लोग रिएक्ट करेंगे, मेडिकल स्टाफ के ऊपर फिजिकल मैन हैंडलिंग होगी और फिर मेडिकल स्टाफ छोड़ के अस्पताल या तो चला जाएगा या काम नहीं करेगा, एंड दैट विल बी अ डूम्सडे सिनेरियो व्हेन वी विल बी एट द पीक व्हिच प्रोबेबली इज गोइंग टू बी समवेयर इन जुलाई दिस ईयर। और एक और चीज हमें पता चली कि जैसे हमारे कुछ दोस्तों के साथ मसला आया तो हमें लास्ट 10 दिन में हमने अच्छा खासा काम किया बेड्स के लिए। इस्लामाबाद में शिफा के अंदर जो कोविड के हेड थे वो पिछले 50 आवर्स से उनको नींद नहीं मिली थी, वो सोए नहीं थे। और यही हाल कुछ और जगहों पे था बिकॉज के स्टाफ की कमी है और इमरजेंसी का लोड बहुत ज्यादा है। तो पैरामेडिकल स्टाफ की जो अपनी हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बारी भाई आपका क्या व्यू है इस पूरे ओवरऑल उस पर? देखिए, मैं तो हम लोग यही समझते थे कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फ्रेजाइल है, और ये जो स्लो डाउन करके अगर देखें इफेक्ट तो होना है, हमें पता है कि अबाउट 70% पॉपुलेशन को ये होगा, लेकिन अगर ये स्लोली होगा तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसको बर्दाश्त कर लेता। अनफॉर्चुनेटली जो शुरू में हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी स्लोली की, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सके, और फिर उसके बाद एकदम ईद के जमाने में, जैसे इस दफा अगली दफा कोई ईद आनी नहीं है, यही आखिरी ईद है, लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर हंगामा किया, तो अब वो सिस्टम आ गया जो हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हमेशा लोग शुरू से ये कहते रहे कि जी हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि जी हम लोग फ्रंट लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन जो है ना कम्युनिटी है, और कम्युनिटी ने अगर बिहेव नहीं किया, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की, तो हम लोग जो है ना, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, दीज आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फ्रंट लाइन ब्रेक हुई तो फिर सारा बोझ आ जाएगा इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे, और अगर खुदा न खास्ता ये ब्रेक करती है, जो कि हो रही है, फिर अलामान अल हफीज, फिर चीजें कंट्रोल से बाहर होंगी। तो इसलिए फ्रंट लाइन को बिहेव करना जरूरी है, उनको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जो एहतियातें बताई जा रही हैं वो करें। देखें, खुदा के लिए मैं कोई नहीं चाहेगा, अगर आप मुल्क की खातिर नहीं, अपने मोहल्ले की खातिर नहीं, अपने शहर की खातिर नहीं, अपने घर वालों की खातिर एहतियात करें। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सारी जिंदगी इस कर्ब के साथ जिए कि उसकी वजह से गैर जरूरी मैंने ये एहतियात नहीं की थी तो आपके बड़े या आपके बच्चे अफेक्ट हुए और खुदा ना खास्ता उनकी मौत हुई। कोई इस कर्ब के साथ जी नहीं सकेगा। तो मेरी इल्तिजा है सब लोगों के साथ, तो खुदा ना एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, और जो जो बताया जा रहा है उसके ऊपर अमल करें। ये कोई, अब तो देखे ना, ये निकल गया ना, पहले शुरू में इक्का दुक्का थे ना, अब तो कोई हर घर का किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार या तो अफेक्टेड है या मौत आई हुई है खानदान में। इसलिए अब तो समझ ले कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये है। अगर कॉन्स्पिरेसी है भी ना, देखे ना, वो चाइना जाने और अमेरिका जाने, हमारी लिए रियलिटी ये है कि ये वायरस हमारे मुल्क में आ चुका है और यह बहुत बुरी तरह फैल चुका है। अब हमने किस तरीके से इससे अपने आप को बचाना है, बस ये है हमारा मैसेज है। जी डॉक्टर सईद, आपसे एक सवाल ये है, हमारे एक मेंबर का सवाल आया कि इज देयर एनी एविडेंस बेस्ड नेशनल स्टैंडर्ड थेरेपेटिक गाइडलाइंस फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस इन पाकिस्तान? डॉक्टर सईद, आपसे ये सवाल है कि कोई है या कोई आगे बनाने का प्लान है? आप अगर माइक खोल लें डॉक्टर सईद अपना। जमशेद, डायग्नोस्टिक्स के मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ उसके ऊपर कि इसके ऊपर जो है ना नेशनल एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जो कि डायग्नोस्टिक्स के लिए भी गाइडलाइंस हैं, उसके एक बना हुआ है। ट्रीटमेंट के, देखिए ट्रीटमेंट तो इसका ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं ना, तो आप इसको आप चीजें यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ चीजें उसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, तो वो अब गाइडलाइंस हैं। ये सारी सोसाइटीज भी आपस में इंटरलिंक्ड है, वो कुछ डेवलप हुई है, कुछ आगे और नई चीजें आ रही हैं, तो इसके ऊपर बात हो रही है। बारी भाई, आपसे एक और हमारे फार्मा के कॉलीग है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है और एक सवाल भी इससे रिलेटेड है। एक तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि गवर्नमेंट ने जो इंडियन रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल पे जो बैन लगाया है और अभी भी उसकी कंप्लीट वेवर नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से जो जनरल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स और ये सारी चीज़ें जो शॉर्टेज की तरफ जा रही है, और आपने इस महीने देखा होगा कि फिर पैनिक बाइंग शुरू हुई है।
तो इसके ऊपर आपका, क्योंकि जो है वो आपकी रीच है उन दरवाज़ों तक जहाँ पे कुछ काम हो सकता है, तो उनको ज़रा सा कोई अक्लमंदाना मशवरा अगर आप दे सकते हो कि इसको वेव कर दें ताकि एक नई मुश्किल में ये मुल्क ना फंसे। जरूर इंशाल्लाह, जहाँ तक दूसरा आवाज सवाल पहुंच ये था सकती कि है। जो सर आइसोलेशन ये सेंटर्स मैं इसमें कह दूं आपसे जमशेद साहब कि मैं भेज चुका हूँ। भेज चुके हैं, जी जज़ाकल्लाह। भेज चुका हूँ। दो बड़े खास सुतून है, उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है, रिसीव भी हो चुका है, और अब वो क्या करेंगे इसका तो जाहिर है वो उनको सारी आपकी डिटेल पता है। आपकी आपकी अजमत को सलाम। अपडेट दे दूं कि इसमें फर्दर आपके फॉलोअप की जरूरत है साथ भाई। उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैंने खुद भी इस पे बात की है, कई मिनिस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट एज सच है नहीं। वो कहते ये है कि जो आपका पोर्ट पे रॉ मटेरियल आ गया उसको तो हम अलाउ कर रहे हैं, बट न्यू जो इम्पोर्ट है उसकी अलाउ नहीं है। 50-60% जो लाइफ मेडिसिन हैं, जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं, उनका रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। तो उस पे आई थिंक थोड़ा सा आपको फर्दर लॉबिंग करने की जरूरत है मेडिकल कम्युनिटी की जरूर तरफ से। जरूर इंशाल्लाह, मैं भी कह दूंगा इसके ऊपर। एक सवाल बारी भाई ये आया है कि जो आइसोलेशन सेंटर कराची में लोगों को पता है, बाकी जगहों पे भी ऐसा हुआ है लाहौर में, कि ये जो एक्सपो सेंटर्स में बनाए हैं जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, और वहाँ पे हम उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं उठा पाए। सो व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट इट? देखिए, बात यह है कि वैसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि जिस वक्त उसकी जरूरत थी वो इस्तेमाल हुई उसकी, और काफी उसके ऊपर मरीज रहे थे लोगों के ऊपर भी। अब जो सूरत हाल जो आ गई, तो अब उसकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई कि अब हमको चाहे आइसोलेशन वार्ड्स की इतनी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उस पर हमने अब एचडीयू बेड्स डेवलप हो रहे हैं जो संडे फ्राइडे से शुरू हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि उस वक्त बहुत जरूरत थी कि लोगों को आइसोलेट किया जाए, और जो घरों पे, और जब खास तौर पर जब ये लोग कच्ची आबादियों में जब जा रहा था, तो उन लोगों को बहुत जरूरत थी, और 500 600 700 800 तक वहां पर लोग रहे, और उसमें ठीक हुए और ठीक होके घर गए। और इसलिए वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स मैं नहीं कहूँगा। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे टेस्ट वेस्ट है, अभी हो सकता है कि इतने सारे है, ये हम बहुत सारे बेड बनाए और उसके बाद जरूरत ना पड़े, अल्लाह ना करे कि उसकी जरूरत पड़े। हम लोगों ने देखें, ये जो चीजें जब शुरू में कर रहे थे तो हमने कहा 10,000 टेस्ट मंगा लेते हैं पीसीआर के, तो उस वक्त कह रहे थे, किसी ने कहा बहुत है यार, ये बहुत है, तो मजाक में किसी ने कहा कि यार अच्छा बच जाएंगे तो फिर ब्लैक में बेच देंगे। तो लेकिन 10,000 तो कुछ भी, 10,000 आज एक दिन में हो रहे हैं टेस्ट सिंध के अंदर। तो वो जो जिसकी जिस पर जरूरत थी वो हुई है। कुछ इन्वेस्टमेंट आप करते हैं आपकी हिफ्ज़-ए-बात तकद्दुम के तौर पर, ताकि अगर उसकी जरूरत पड़े, और जरूरत बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे आप फायर फाइटिंग की चीजें लगाते हैं, पूरी 20-20 साल गुजर जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स है? अच्छा, ये एक हमारे सवाल मेंबर है आमिर इब्राहिम, वो सवाल करना चाहेंगे। आमिर इब्राहिम को आप माइक प्लीज ऑन कर दें। तुफैल आमिर इब्राहिम इज द सीईओ ऑफ जैस मोबिलिंग। जो हमारे होस्ट हैं तुफैल एंड काशिफ, प्लीज ओपन द माइक ऑफ। जी बिल्कुल, मैंने कर दिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी इंफॉर्मेटिव एवरीवन। आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर एनी वन, बट एनीबडी कैन आंसर। ये बताइए कि आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज के बारे में हम सारा सुन रहे हैं, तो व्हाट कैन बी डन इन द शॉर्ट टर्म टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी, एंड मोर स्पेसिफिकली कैन द कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस डू एनीथिंग टू हेल्प? और अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो क्या एनडीएमए को हेल्प करें, या किसी स्पेसिफिक अस्पताल को करें, या किसी सूबाई गवर्नमेंट के साथ अपनी मदद आगे बढ़ाएं? सही बारी। देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि आईसीयू बेड्स की जो है ना, उसके लिए हमने जो है ना आईडीयू बेड्स को डेवलप कर रहे हैं, ताकि आईसीयू बेड्स के ऊपर, क्योंकि अभी इतना 100% उसके ऊपर लोड नहीं पड़ा हुआ, वो ऑक्यूपाइड है किसी और मरीज की वजह से जिसको उस बेड पे नहीं होना चाहिए। आईडीयू, और डेफिनेटली कॉर्पोरेशंस को मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपनी, हर एक की अपनी वो होती है कि वो चाहे हुकूमत के साथ करना चाहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करना चाहे, या डीएमए के साथ करना चाहे, या किसी हॉस्पिटल के साथ। एवेन्यूज हर जगह खुले हुए, आप तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स को अपना रोल अदा करना चाहिए इस वक्त के ऊपर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर सही, पहले सईद साहब आपने कुछ कहना है? नहीं, आप बोलें। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि आई थिंक, देखें, सिर्फ जो अभी पहले भी सवाल आया था, आई थिंक जो भी हम फैसिलिटीज या जो भी हम रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम उसको मेन हॉस्पिटल्स में क्रिएट करेंगे तो लॉन्गर लास्टिंग होगी,
पहली चीज, हॉस्पिटल्स जितने भी बड़े हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, जिन्ना हॉस्पिटल हो, इसीलिए मेरे सईद साहब बैठे हुए हैं, तो उनका ही एमएस भी हैं सिविल हॉस्पिटल के, तो इनका जो कहते हैं ना, हिज एक्सपीरियंस इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज मोर देन एनीबॉडी दैट आई नो। तो आई फील के आप जैसे कॉर्पोरेट वाले हैं, यू नीड टू, अगर आज हमने कॉर्पोरेट में बड़ी एक सजेशन है मेरी, और मैंने पहले भी दी है, कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने सिविल अस्पताल और जिन्ना अस्पताल को पे इन्वेस्ट करें, तो हमारे मुल्क के लिए और हमारे शहर के लिए खुसूसन, और हमारे प्रोविंस के लिए इन 2 अस्पतालों पे करें, अगर बजाय इसके कि जो शहर के कुछ दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं बिकॉज बड़े नाम होते हैं वो अस्पतालों के, वो जरूर करें। लेकिन आई थिंक जब तक सिविल अस्पताल और जिन्ना अस्पताल बेहतर, आज अगर वो उस स्टेज पे होते जहां उनको होना चाहिए, और उनके पास स्टाफिंग भी है, उनके पास नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी, उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं। What corporate sector needs to do, and I spoke to the CM as well about this particular thing, and I said कि every ward should be taken over by along with one corporate. एक corporate एक ward को take over करे, उसकी कुछ चीजों को वो कर ले, गवर्नमेंट के पैसे वैसे ही आ रहे हैं, पिलफ्रिजेस भी कम हो जाएंगी, और ज्वाइन करके हमारा सिविल अस्पताल और जिन्ना अस्पताल ऐसा हो जाएगा जिसमें ज्यादातर लोग इलाज कराने से गुरेज नहीं करेंगे। फिलहाल तो मुश्किल ये है कि अगर आपको कोई आदमी कह दे आप जिन्ना अस्पताल चले जाएं या सिविल अस्पताल चले जाएं, तो आदमी डर जाता है ना इस हालत में, खासतौर पे कोविड के। So I think our focus should be on the main government hospitals, be it civil hospital, be it Jinnah hospital, be it Abbasi Shaheed or whatever. These hospitals, corporate sector has to take them over. Right. थैंक यू। जमशेद, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे सवाल चैट बॉक्स पे आए हुए, अगर वहां से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक कर लें, और आमिर इब्राहिम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को जरूर लुक आफ्टर करें। ऑलरेडी जैज ने सपोर्ट किया है, पीएम फंड को भी सपोर्ट किया है, ये और बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साद खालिद नियाज और बारी साहब से मिलकर अगर आप लोग कुछ करें तो ऑफ कोर्स ये इसमें सबका भला होगा। एनी अदर क्वेश्चन? असद अली शाह क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, असद अली शाह को प्लीज ऑन कर दें, इनका वॉइस इनकी ऑन करें। असद अली शाह। तुफैल जी बिल्कुल कर दिया मैंने। जी असद अली शाह साहब। जी हाँ बिल्कुल। जी मेरा सवाल ये है असफर, कोई भी ये बल्कि साद नियाज साहब बात कर रहे थे या डॉक्टर बारी बताएं कि कॉर्पोरेट्स अगर हेल्प करें, मैं भी आई थिंक ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, दोनों हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन वहाँ की इंटरनल गवर्नेंस जो है इस वक्त, जो मैनेजमेंट है, वो आप समझते हैं कि है जो एमएसएस हैं या वो कोऑर्डिनेशन हो सकेगी उसकी, अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है? क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए ना कि वहाँ पर भी अगर वहाँ की इंटरनल गवर्नेंस सही नहीं होगी तो कॉर्पोरेट्स भी इतना शायद हेल्प ना कर सकें। असद साहब, इसकी एक एग्जांपल जिन्ना हॉस्पिटल में है ना ऑलरेडी, पैफ की पेशेंट एड फाउंडेशन के जरिए जिन्ना हॉस्पिटल तो पूरा रिवैम्प हो रहा है ना। व्हाट वी नीड टू डू इज, आज फायदा हुआ उसका, लोगों को भी फायदा हुआ बिकॉज बेड्स एक्स्ट्रा क्रिएट हुए उसकी वजह से, एंड आई एम श्योर सईद साहब वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस, बट आई पर्सनली, मेरी जाती राय ये है कि अगर जिन्ना में हो सकता है तो सिविल में भी हो सकता है, और उसको और बढ़ाने की जरूरत है। बजाय इसके कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे जो फलाही नहीं है, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत फंड करता है। इस वजह से करता है कि वहां ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है और सारी चीजें ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इसको सोचने की जरूरत है, बिकॉज जो अगर आपने वाकई में पाकिस्तान की गरीब आवाम को सपोर्ट करना है तो मेरे हिसाब से आपको सिविल और जिन्ना अस्पताल को सपोर्ट करना है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, असद भाई, मैं आपकी बात को लेके चलता हूँ। जी साद असद ने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप जब पेशेंट एड फाउंडेशन से जब उनसे बात करेंगे तो वो अपना दुखड़ा आपको रो के बताएंगे कि क्या होता है वहां पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक के जो है ना ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आप जितनी कर लेंगे वो सस्टेन नहीं करेगी। देखिए, एक आदमी गलत आ जाता है ना, वो इतना मुश्किल क्रिएट करता है, जिंदगी अजाब कर देता है।
आज मैं ज्यादा खुल के नहीं बात करना चाहता, क्योंकि अभी भी जनाब में अभी पेशेंट एड फाउंडेशन ने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आईसीयू एचडीयूज हम बढ़ाना चाहते हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट भी कुछ करे उसमें। इस सिचुएशन के अंदर ये घंटों में इसकी रिजोल्यूशन आनी चाहिए थी, 1 घंटों के अंदर होना चाहिए था। 5 दिन हो गए हैं, वो पहले सबरी उल्टी हुई फिर सीधी हुई, मैं पीछे पढ़ के उसको कर रहा हूँ। लेकिन जब तक कि पब्लिक सेक्टर अपना दिल नहीं खोलेगा, आपको वेलकम नहीं करेगा, तो ये चीज नहीं होगी। ये असद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और गवर्नेंस को ठीक करना जरूरी है। सईद साहब को पता होगा, सईद साहब जब चले गए उनके बाद जो लोग आए उसके बाद क्या हाल हुआ। सईद वाज वेरी ओपन, सबसे मदद भी ली, कॉर्पोरेट्स को भी लेके आया। लेकिन देखिए इसकी ये सिस्टम से चलता है, ये प्रोसेस से चलता है, पर्सनैलिटी से नहीं चलना चाहिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा ना, ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, तो इंशाल्लाह ये प्रेशर बनेगा। एफपी जहां तक पहुंची है ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज वहां तक पहुंच गई है। हम तो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेने में महीनों लग रहे हैं, पहचानने के लिए महीने लग रहे हैं। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के हर जगह का यही हाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कोशिश, मैं नहीं कह रहा कि इसके रिजल्ट्स, लेकिन मुझे तो पैफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे, ठीक है ना। इवेंचुअली रिजल्ट्स, ये तो सिचुएशन बड़ी ऑड सिचुएशन है जो कोरोना के हिसाब से। मैं तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें इन द फ्यूचर, जैसे आप बारी ने शुरू में कहा कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड दैट कम्स आउट ऑफ समटाइम्स डिजास्टर एज वेल, तो ये गुड थिंग में कम आउट कीजिए। अब कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मिलके उसके रूल्स ऑफ जो गवर्नेंस है उनको उनके ऊपर मेहनत करे, काम करे, अल्लाह ताला उसमें मदद करे, व्हाई नॉट। थैंक यू। फसी मंगी को प्लीज ऑन कर दें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर जमशेद। 1-2 सवालात करेंगे फिर हम उस पे वोट ऑफ थैंक्स की तरफ जाएंगे। फसी मंगी प्लीज, तुफैल प्लीज ऑन द फसी मंगी वॉइस। जी बिल्कुल कर दिया मैंने। जी फसी मंगी, जी फसी साहब आप सवाल पूछें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि what are the key indicators that you look at to monitor how bad or good coronavirus is in Pakistan? I think जो total number है absolute 150-160,000 का number, वो बहुत लोग कहते हैं कि testing बहुत low है, तो वो number is not accurate. So what numbers do you guys look at to see how good or bad the situation is at any point? If you want to see whether the disease is subsiding or not, then the testing should be roughly 5% positive. But if it is higher than that, that means things are not good. And that is an argument that currently we have positivity rates of 45% or more. On days we have crossed 50%. And that is not a very good sign. That is in fact a very bad sign. So you have to, for control, you have to bring it down. And also you need to look at your health facility and look at how exhausted and how full they are getting, because that also gives you an indication as to how you're going to handle these numbers that are constantly increasing and telling you that the disease is rampant. डॉक्टर इमरान यूसुफ यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान यूसुफ जोफा। इमरान मोहम्मद के नाम से इनको प्लीज इनका वॉइस ऑन कर दें, ये कमेंट करना चाह रहे हैं, क्विक कमेंट। डॉक्टर इमरान यूसुफ जोफा। तुफैल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्विकली एक्नॉलेज करना है ट्रू ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल बारी खान और हम जो इंडस हेल्थ नेटवर्क है, क्योंकि मैं ये सारे सिम्टम्स के बाद, बिल्कुल निमोनिया के अटैक के बाद जिस तरह डॉक्टर इंडस पहुंचा हूँ और जिस तरह डॉक्टर बारी ने पर्सनली टेक केयर की और उनकी टीम, आई सैल्यूट टू देम, जिस तरह उन्होंने इमरजेंसी के अंदर रिवाइवल किया, फिर उसके बाद कोविड वाले यूनिट में रिवाइवल किया और विद इन 4 days जो है आई वाज बैक टू माय सेकंड एंड न्यू लाइफ। और ये जिस स्टेरॉइड्स की अभी बातें हो रही हैं, ये राइट अवे इंडस जो है वो ऑलरेडी ट्रीट कर रहा था,
जिस प्रोफेशनल तरीके से ब्लड मार्कर्स लिए जा रहे थे, जिस तरीके से एक्सरेज लिए जा रहे थे, जिस तरीके से जो उनकी टीम मैंने देखी है माशाल्लाह डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल काम कर रही थी। आई थिंक डॉक्टर बारी, थैंक्स टू यू, माय सेकंड लाइफ जो है वो आपको, और प्लस जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कॉर्पोरेट्स वालों ने भी बात की है, प्लीज इंडस जैसे इंस्टीट्यूट को इसको जो है वो स्ट्रेंथन कीजिए, डॉक्टर बारी जैसे लोगों को स्ट्रेंथनिंग कीजिए। आई थिंक दीज आर ट्रू ब्लेसिंग्स फॉर पाकिस्तान। Thank you, Dr. Imran. Now over to you, Jamshed, for last two questions, please. जी फेसबुक और इसमें भी एक क्वेश्चन बार बार आया है जो साद भाई ने बहुत पहले ही बताया था कि जब ये फियर फैक्टर आता है, जैसे पॉजिटिव होता है तो क्या करना चाहिए, तो मैं उसे बस समराइज कर देता हूँ। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि इमरान खान की तरह बिल्कुल घबराए नहीं, इसमें घबराना नहीं है और अपनी हिम्मत जो है वो मजबूत रखनी है। साथ में जो है वो उन्होंने कहा कि पैनाडोल लें अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, और 70% लोग विथ माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक मीनिंग नो सिम्टम्स के साथ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और सनाए मक्की मना की उन्होंने कि ये ना लें क्योंकि ये सना जो है ये लैक्सेटिव है और इससे डायरिया हो जाता है। और कुरान से उन्होंने अपना ताल्लुक जोड़ा उसको तर्जुमे के साथ, और उन्होंने कहा कि उससे उन्हें बड़ी हिम्मत और तक़वियत मिली। तो ये बार बार सवाल आया था तो मैंने कहा इसको समराइज कर दूंगा। एक और चीज को प्लीज प्रमोट करें जो हमारे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप में मुसलसल बात चल रही है कि जितने ये टोटके आ रहे हैं और जो मेडिसिन के जो नुस्खे आते हैं इनको प्लीज प्रमोट ना करें, इनको फॉरवर्ड ना करें। हमारे एक हैबिट नेशन में डेवलप हो गई है कि कोई भी चीज आती है हम बगैर सोचे समझे उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, वो वायरल होती है, लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि एक क्रेडिबल आदमी ने भेजी है। तो इसको प्लीज ना करें। दो चीजें अगर कर दूं तो इसमें आपको आसान हो जाएगी, एक परहेज से परहेज करें और मशवरों से परहेज करें और कंसल्ट कर लें जरूर किसी से। एक सवाल आया है जो इसपे फेसबुक पे, जो बारी भाई अगर आप इसमें थोड़ा सा गाइड करें कि कोई हमने अभी तक सेंट्रल यूएन नंबर कोई ऐसा नहीं बनाया है, टोल फ्री नंबर के किसी को भी कोई इशू आए तो उस पर वो कॉल करके अपनी बात को बता सके और समझ सके कि करना क्या उसने, ऐसा कोई प्लान है अभी भी या ऐसा कोई प्लान नहीं? देखें है इसके ऊपर, मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसा एक नंबर होना जरूरी जहां आम आवाम करे तो उसको डायरेक्शन मिल जाए। एक नंबर शुरू से चल रहा है 1166, आप उसके ऊपर कितना इफेक्ट, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन ये है कि अभी इसमें ये मुझे तशगी रहती है कि ऐसा एक नंबर होना जरूरी है। काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना किसी के ऊपर इसके ऊपर ये बहुत शुरू में हो जाना चाहिए था, और अब इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में वैसे भी है, किसी को भी ये कर लेना चाहिए था। तो जरूरी है ये हो। कुछ एक डीएमए वाले कह रहे हैं हमने एक कोई ऐप बनाई थी फेडरल गवर्नमेंट ने कि जिसमें है, लेकिन वो इतनी मुझे नजर नहीं आई है कोई इसके। जी जमशेद आप पहले कर लें, मैं एक आखिरी पर सवाल करूंगा। एक और साथ भाई आपसे ये सवाल मैं पूछूंगा कि ये जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो लोगों को जाहिर बात है हॉस्पिटल का एक्सेस बड़ा डरावना भी लग रहा होता है, जाना भी नहीं चाह रहे होते, तो कोई ऐसी नेशनल टेली हेल्थ सर्विस या कोई टेली कंसल्टेशन कोई सर्विस हमारे पास मौजूद है कि लोग उस पर कॉल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको घर से बैठ के अंडरस्टैंड कर सकें और प्रिस्क्रिप्शन ले सकें? दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। एक तो आपको जनरली मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का कोई ना कोई जानने वाला डॉक्टर होता है, एनी फिजिशियन शुड बी एबल टू गाइड यू। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो उसमें आप किसी हेल्पलाइन और उसमें जाने के, जिनके नहीं है एक तो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हेल्पलाइन बनाई हुई है, वो उनका पूरा एक सिस्टम है। इनफैक्ट दे आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग व्हाट दे कॉल वर्चुअल हॉस्पिटल, एंड दैट वुड देन मेक, उसका मकसद यही है जैसे आपने कहा ना कि आपकी जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अस्पताल पे जैसे हम कह रहे हैं लॉकडाउन से आप टेम्परेली बंद करें, लोड को कम करें ताकि हेल्थ सिस्टम, दूसरा आप लोगों को वहां आने से रोकें, तो यू विल हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ दिस। ये जो आप हेल्पलाइन की बात है पीमा की है, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन अगर आप डालें तो वो हेल्पलाइन काफी दिन से वो चल रही है, और उसमें उन्होंने तीन या चार डॉक्टर्स हैं जो 24 आवर्स आपको गाइड करते हैं, और फिर उसमें स्पेशलिस्ट से भी लिंक कर देते हैं। अगर जरूरत हुई तो वो चेस्ट से भी लिंक कर देंगे, अगर जरूरत हुई तो वो जिस भी स्पेशलिटी का इशू अगर है तो उससे लिंक भी कर देते हैं। इट्स अ प्रीटी इफेक्टिव हेल्पलाइन। तो वो मैं नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन अगर डाला जाए हेल्पलाइन तो वो आ जाएगा। मैंने फेसबुक पे भी डाला था अपने। बाकी ये कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आप देख लें, ये तो बता दिया है। सांस का जैसे सईद साहब ने कहा, सांस या अगर आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे या अगर आपको दीगर अमराज हैं
तो फिर बेहतर है कि किसी से फोन पे मशवरा कर लें। ज्यादातर लोग अवेलेबल हैं। मुझे पता है कि आईडी स्पेशलिस्ट जो है ना, इन्फेक्शियस डिजीज के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ओवरवेल्म्ड है, तो उनका वर्कलोड कम करने की बड़ी शदीद जरूरत है, बिकॉज वो हैं भी कम शहर में, पाकिस्तान में कम है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आईडी स्पेशलिस्ट के पास मरीज को तभी भेजें जब हम ये समझते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत का क्वेश्चन है या लाजमी है। बारी भाई, एक सवाल इस्लामाबाद से बहुत घबराया हुआ है कि पीक कब तक आएगी, और या क्या पीक आ गई है? ये शाजिया ने पूछा है कि पीक क्या समझेंगे, कब आएगी पीक इसकी? $1 बिलियन क्वेश्चन है ये। और जुलाई अगस्त अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पीक ये इसी प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ये बिल्कुल सीधा। अल्लाह करे कि बस कहीं किसी तरफ ये करवट ले इधर उधर, लेकिन आई सी के जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। अगर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, अगर कोई इंटरवेंशन कर लिया तो शायद ये इससे पहले अब उसको पीक को राइट की तरफ डायरेक्शन दे और वो थोड़ा प्लेटू हो और फिर नीचे की तरफ आए। लास्ट क्वेश्चन मैं बारी भाई आपसे भी और बाकी दो मेंबर से भी पूछना चाहूंगा जो आज हमारे गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, कि एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए इस पेंडेमिक में, और अब जो एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो उसमें एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया का कंट्रोल जो है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको किसी तरीके से आप लोग जो इस किस्म की चीजें हैं उसको डिनाई करना शुरू करें। देखें, लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी अस्पतालों को पैसे मिल रहे हैं। किसी ने मुझे ये भी कहा कि जी वो हॉस्पिटल वाले पैसे दे रहे हैं अपने आपको दाखिल करने के लिए। अरे हम तो मिन्नतें कर रहे हैं, खुदा के लिए बताओ, भरा हुआ अस्पताल है। ये जरा लोगों के अंदर ये जो चीजें हैं ना, इसको नलीफाई करना आप कॉर्पोरेट वाले लोग जो है ना उनको करना, कॉर्पोरेट ग्रुप को इस बात पे बड़ा ख्याल करना चाहिए अपना, क्योंकि आप लोगों का रीच बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर जहां ऐसी चीज नजर आए ना उसके ऊपर जोर मजम्मत करनी चाहिए, चाहे डॉक्टरों के साथ जो हो रहा हो, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ जो हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त मोटिवेशन, अगर इनकी मोटिवेशन खत्म हो गई ना तो फिर सहारा कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल पे, और ये लोगों को समझाना कि भाई ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है, एहतियाती तदाबीर को बता देना, सब लोग अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह सब मिल पे इस पे काबू पा सकेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर सईद, आपको एडवाइस करना चाहें कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर आपको स्ट्रेस देना चाहिए कि लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। मैं फरवरी के शुरू के दिनों में वियतनाम गया था और वहाँ मैंने नोट किया था कि वियतनामीज जो थे वो सब के सब जो है मास्क पहने हुए थे। ऐसा कोई वियतनामीज ठेले वाला हो, दुकानदार हो, और मैं अपने होटल से बाहर निकल रहा था तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपने जो है मास्क नहीं पहना हुआ है और आप मास्क पहन के फिर निकले हैं। अब मैं यहाँ से अपने घर से सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ, डॉ मेडिकल कॉलेज की तरफ, तो पीछे वाले रोड, निश्तर रोड से मैं जाता हूँ और उस पर मैं कभी एक या दो लोगों को देखता हूँ जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। वैसा बिल्कुल मास्क फ्री चल रहे होते हैं और कोई परवाह नहीं होती है। और फिजिकल डिस्टेंस की जहाँ तक बात है वो भी बिल्कुल कोई भी नहीं होता है जो कि उसको अपनाता है। तो ये चीज़ें हैं, जो दो चीज़ें, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस देना चाहिए हमारी सोसाइटी को और ये इम्पार्ट करना चाहिए उनको नॉलेज के, भाई ये है तरीका आपको अपने को बचाने का। जी साद भाई आपसे एक सवाल और भी मैं कर लूं कि अगर हम सीपीजी या ये कॉर्पोरेट कोई आपके साथ मिलके किसी वार्ड के अंदर हम कुछ करना चाहें सिविल में या जिना में, तो वुड इट बी पॉसिबल? कोई इसका ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि हमें पता हो कि सही जगह पैसे जा रहे हैं, सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, और कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बन सकता है? बिल्कुल, उसमें बल्कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जी, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हम एक इदारा चला रहे हैं सिविल अस्पताल में, सईद साहब और मैं, और उसमें हमें कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है। हम वी हैव द मोस्ट एडवांस्ड एंडोस्कोपी फैसिलिटी इन पाकिस्तान, रन इन सिविल हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट, and you know that is one example, and that is why I say कि मैं करने के बाद ही तो कह रहा हूँ, हमें वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं वो तो हर जगह होती हैं मुश्किलात, लेकिन आपका एक
एम है, उस एम को हासिल करने की उन मुश्किलातों को, अब मुश्किलात के लिए अब बारी साहब ने इतना बड़ा काम किया इंडस का कि कोई आसान काम तो नहीं था ना, मुश्किलात तो इसमें भी बहुत थी। तो वो, लेकिन वो मुश्किलात के साथ साथ काम भी करना है, तो चीज़ों को बेहतर करना है हर तरफ। 2000 बेड का अस्पताल इस शहर में नया बनने वाला अभी नजर नहीं आ रहा मुझे, और 4000 के बेड के अगर जिना और सिविल दोनों मिला दें तो ये कोई, आज जितना गरीब, सबसे गरीब आदमी इस प्रोविंस का वो सिविल और जिना जाता है, आप निकाल लें ओवरऑल परसेंटेज वाइज, कोई सवाल ही नहीं। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट, वो हमें गेम चेंजर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसे दे रही है। मेरा मकसद सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे मिल रहे हैं, स्टाफ की सैलरी नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको सिर्फ थोड़ा गवर्नेंस के इशू हैं और बाकी जिसको कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम, एंड आई थिंक दैट इज डूएबल। आपका मैं जो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स पे मैं चाहूंगा। एक पहली चीज, आई थिंक आप लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर जाना कि खुदा के लिए दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिकल स्कोरिंग, दिस इज द टाइम टू यूनाइट नेशन। ये नेशन हमारी ऐसी नहीं है जो बातें सुने, जो सईद साहब कह रहे हैं मास्क पहन के नहीं घूम रहे यार हमें पता है नहीं करेंगे ये। वो जो कल चीफ मिनिस्टर, क्या हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने जो बात कही है, वो तरीका सही नहीं था लेकिन बात गलत भी नहीं थी। तो हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये कौम वो कौम नहीं है, ठीक है, पहली चीज। तो इस कौम को आप कैसे कन्विंस करेंगे? इनको डराना पड़ेगा। इनको जब तक आप डराएंगे नहीं, जब तक आप इनको बताएंगे नहीं कि भाई हमारे हालात खराब है, हाथ पैर हमने उठा लिए, अब ठीक है, अगर तुमने ख्याल करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अस्पताल में जगह नहीं। अगर आप उनको एक तरफ ये बताएंगे कि ये फ्लू है, दूसरी तरफ बताएंगे कि हमारे पास तो अभी 70% बेड खाली है और अभी हम 4000 और बना रहे हैं और आप फिक्र ना करें, तो ये कभी भी मास्क वास्क नहीं पहनेंगे। इनको, ये कौम ऐसी है नहीं, आई एम सॉरी, मैं उसमें शामिल हूँ। दूसरी तो इसलिए पहला जोर गवर्नमेंट पे आप लोग बहुत दे सकते हैं। दूसरा यार देखें, मेरी कल जैसे मैंने कहा बिजनेसमैन से बात हुई, आप सब बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो लोग बहुत उसमें वो करते हैं। हमें अगर हमारे 10,000 लोग जिंदगी बचती है या 5,000 लोगों की बचती है या 25,000 लोगों की, यार दैट्स अ लार्ज नंबर। उसको आप कैसे इक्वेट करेंगे इकोनॉमी के साथ? और अगर आप सिलेक्टिव लॉकडाउन उस वक्त कर रहे हैं जब पूरा शहर 34% ऑफ कोविड-19 कराची में, आप कराची को बंद किए बगैर कैसे करेंगे? बाकी मुल्क में भी हम ही भेज रहे हैं लाहौर कराची वाले। तो आई थिंक वी नीड टू कन्विंस द गवर्नमेंट के, देखें मैंने कहा था, इमरान खान साहब के जो एडवाइजर है उनको कहा था कि उनको कहें इसमें गलती और सही का मामला नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कोविड-19 में कि उसको सब चीजें पता थी या उसने सब सही फैसले किए। सवाल ये है कि हमसे जो भी हुआ उससे हमने सीख के और अपने आप को अब तब्दील करना है। आज इस वक्त आई एम सॉरी, ये सिलेक्टिव लॉकडाउन वॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला और हमें उस सिनारियो का ख्याल करना है जो आगे मैंने आपसे कहा था अस्पतालों का। लास्टली, आप लोगों ने गवर्नमेंट लोगों जिससे भी मिले, आप उनको खुदा के लिए, डॉक्टर्स का अगर ख्याल नहीं कर सकते तो उन्हें गालियां मत दें। हमें पैसे मिल रहे हैं कि हम बंदों को मार रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं हम कोविड पॉजिटिव कर रहे हैं। हम अपने मरीज को मारेंगे यार? आपने अपने क्लाइंट को कभी मारा है? हमारा क्लाइंट तो हमारा मरीज है, हम क्यों मारेंगे भाई? तो वो बच्चे जो है ना, खासतौर पे, हम तो चले मैच्योर हो गए, सईद साहब, बारी साहब, हम लोग तो अपने आप आखिरी एंड पे हैं गेम के, लेकिन जो जूनियर्स हैं वो बहुत डिसहार्टेड हैं। वो जाते हैं घर में, मेरे पास अभी साउथ सिटी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी एक जूनियर है, वो बेचारी कोविड-19 वार्ड में थी, अभी उसके फादर हैज जस्ट बीन वेंटिलेटेड। ठीक है ना? इस चीज का किसी को एहसास है? मतलब वो बच्ची हमारे पास लगी हुई थी, थ्रू आउट काम कर रही है, और अब वो देखें, ये एहसास बड़ा जरूरी है। बाकी दुनिया सैल्यूट कर रही है, हमारे यहाँ पत्थर मार रहे हैं। तो ये आपको जब चांस मिले लोगों को समझाएं और गवर्नमेंट के लोगों को भी समझाएं कि देखें, इस मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी लेके और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वरना हम बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। ओवर टू हो गया जी ओवर टू असफर, प्लीज डू क्लोजिंग रिमार्क। पहली बात तो मैं साथ भाई आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, और आपने जो बात की सीपीजी के रोल की, हमने पिछले बहुत सारे हफ्तों में बहुत सारी लॉबिंग करने की अपने तौर पे भरपूर कोशिश की, और ऐसा नहीं कि लोगों ने बात नहीं सुनी, लोगों ने बात सुनी भी, और हम इस उसमें थे कि शायद चीजें बेहतर हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि 3 महीने बाद ये पता चलता है, जब हम खुद प्रॉब्लम में आए और हर रोज की बुनियाद पे प्रॉब्लम में आए, और एक एक बेड के लिए 15-15 हमारे मेंबर्स
हर तरह का इन्फ्लुएंस लगाते रहे और कई घंटों तक हॉस्पिटल में बैठ नहीं मिलता। ये सारे बड़े शहरों का हाल था। ये पिछले 2 हफ्ते में हुआ। इस दौरान हमारे बहुत सारे जीतने वालों की डेथ्स भी हुई। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम उस सिलसिले को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने तौर पे। जो वॉइस पहुंचा सकते हैं, जो कन्विंस कर सकते हैं, जो प्रेशर कर सकते हैं, वो विदाउट एनी लगी लिपटी, विदाउट एनी फेयर हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात भी कम से कम हमारा ग्रुप इसको बिल्कुल, क्योंकि हमारे ग्रुप में 7 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, बारी भाई खुद हमारे मेंबर हैं, इनको पता है डे एंड नाइट वहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही होती है। हमने दरख्वास्त मुसलसल की है कि प्लीज खुदारा इस कौम पे रहम करें और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना उनको खत्म करें। जो एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपके पास ऑलरेडी वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम है, एक नेशनल एनवायरनमेंट इसको क्रिएट होगा। एक आप जो डर की बात कर रहे हैं वो डर भी उस वक्त क्रिएट होगा जब एक यूनिटी होगी। इस वक्त भूल जाए आपने किसने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया। अब जो हो गया चले, अब भी हो गया। आज की तारीख में भी अगर हम बैठे हैं 16 जून या 17 जून, जो भी आज तारीख है, आज से हम आगे बढ़े तो आज अगर हम यूनाइटेड हो जाएं। बट मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए और चीफ मिनिस्टर को नहीं मिले। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए खुदारा ये ना करें। मैंने आपके सारे मिनिस्टर्स को भी ये बात बोली है, हर रोज की बेस पे बोल रहा हूँ। हर जगह पे मसला आता है, हम उठ के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर में भागते। तो हर काम प्राइम मिनिस्टर के करने का नहीं होता, बट सिस्टम में कहीं पे फ्लॉ आ रहा है, इसको एड्रेस करें। ये सिचुएशन खराब से खराबतर होती चली जा रही है। अगर बड़ा जो घर का होगा वो अगर यूनिटी मेंटेन नहीं करेगा तो नीचे वाले सब जो है बिखर जाएंगे। तो प्लीज इस चीज को मेंटेन करें और थोड़ा फोकस करें, रियल इश्यूज पे फोकस करें। जो 10,000 बेड की आज बात पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ने की है, इस किस्म के मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ना दें। ये एक रिक्वेस्ट है। तीसरी है कि मैं अपने तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर सईद साहब का, डॉक्टर बारी का और डॉक्टर साद खालिद नियाज का। बट आज हमारा जो वोट ऑफ थैंक्स फॉर्मल है वो हमारी मेंबर है शाजिया इस्मत, जो इस्लामाबाद से हैं। ये भी बेचारी हर रोज की बेस पे, आप यकीन करें कोई मसला आता है, ये उन मुजाहिदों में से हैं जो मतलब हर एक के लिए अवेलेबल होती हैं, हर जगह हॉस्पिटल्स में जगह तलाश कर रही होती है। जब हमें सिविलियंस में जगह नहीं मिलती तो हम फोर्स के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां कुछ करते हैं। और मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ इस वोट ऑफ थैंक्स से पहले, कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, और आपसे मुराद आपकी पूरी मेडिकल कम्युनिटी है, उसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है बल्कि जो पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं कहता हूँ हीरोज है, इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। और जिस किस्म की गुफ्तगू आपकी बहुत सारी मीडिया चैनल्स पे होती है उसे कंडेम करना चाहिए। ये भी हमारा वो है। अगर आपके कई लाख लोग जो पढ़ लिखे हैं, अगर वो अपनी वॉइस क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक तूफान बर्पा होगा। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाजिया को कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। और मेरी तरफ से, सीपीजी की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया प्लीज। थैंक यू सो मच असफर फॉर आस्किंग मी फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और सबसे पहले तो तमाम हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जितनी हमारी कम्युनिटी इस वक्त काम कर रही है टू सेव द पेशेंट्स, टू सेव द ह्यूमैनिटी, उन सबको सलाम मेरी तरफ से, सीपीजी की तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से। क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं वो एक कमेंडेबल काम है और हम सबको उसकी रिस्पेक्ट और उसकी कदर है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद कुरैशी साहब, डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब और डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे आज लगी अब्दुल बारी खान साहब की, वो ये थी कि हेल्थ केयरर्स या जो हेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं वो फर्स्ट डिफेंस लाइन नहीं है, वो लास्ट डिफेंस लाइन है। सबसे पहले हम खुद आते हैं एज कम्युनिटी, एज पीपल। सो हमें अपना रोल प्ले करना है, एडवोकेसी करनी है, लोगों को बताना है, रोल मॉडल बनना है। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमें डॉक्टर्स को सही कह रहे हैं लास्ट डिफेंस लाइन पे रखना चाहिए। वो अगर कोलैप्स करते हैं तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। तो वेरी मच, वेरी कैंडिड डिस्कशन ओवरऑल। बहुत कुछ हमने लर्न किया, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं जो हम आपसे चैट के थ्रू या असफर के थ्रू दोबारा से पूछेंगे। थैंक यू असफर, थैंक यू सीपीजी, एंड थैंक यू डॉक्टर्स एंड आवर nurses, everyone. And thank you all the participants also who are attending on Zoom और on Facebook के जिन्होंने आज के उसमें अटेंड किया। और आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया। इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में हम जो इश्यूज पे हमने आज बात की, हम एज अ नेशन, एज अ ग्रुप इस पे अमल करेंगे और आगे फर्दर प्रोपगेट करेंगे।
ये समझ के घर पे ना बैठे कि आपका रोल सिर्फ अपने घर वालों की बात करना है, वो तो है आपका, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स में लोगों का ख्याल करें, चीजों को प्रोपोगेट करें, जो सही बात है उसको प्रोपोगेट करो। साथ भाई की सबसे अच्छी बात जो लाइटर नोट पे की, लेकिन सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी इन एडिशन टू डॉक्टर बारी, कि परहेज से परहेज करें और मशवरों से परहेज करें। आई थिंक सबसे अच्छी बात, इस बात पे हम आज की मीटिंग को एडजर्न करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Assalamu alaikum.